Hello, children. Welcome back to your English online class. I'm sure you all are good at your home, and I hope your exams went well. Your midterm examinations, they all were good. Okay, so we are back with another topic from our grammar book, and the topic is punctuation. Okay, so we are going to know about punctuation marks. But first of all, let us see what do we mean by punctuation. Punctuation is the using of specific marks in writing to separate words, phrases and sentences to make the meaning clear. So punctuation क्या होता है? Punctuation होता है using some specific marks. कुछ ऐसे marks होते हैं जो हम use करते हैं while writing a sentence इन ऑर्डर टू सेपरेट वर्ड्स को अलग अलग करने के लिए या फ्रेजेस या सेंटेंसेस को का मीनिंग क्लियर करने के लिए. ओके, सो दीज आर punctuation marks. So now we are going to see some of the main punctuation marks, commonly used punctuation marks. Okay, so we have these marks, but before that, one thing you have to keep in mind, capital letters are also included in this. Okay, we all know capital letters, when to use we will see. So these are some of commonly used punctuation marks जो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं. कौन कौन से हैं? फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, कॉमा, सेमीकोलन, कॉलन, अपॉस्ट्रोफी, कोटेशन मार्क्स, हाइफन एंड डैश. ओके, सो ये कुछ ऐसे मार्क्स हैं, पंक्चुएशन मार्क्स, जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं. ओके, और इन मार्क्स को ब्रैकेट में भी देखो आपको सिंबल गिवन है, राइट. सो ये आपके पंक्चुएशन मार्क्स हैं. अच्छा, इसमें लास्ट टू देखो, हाइफन एंड डैश. ऑल्दो ब्रैकेट में वो आपको सेम लग रहे होंगे, बट एक्चुअली डैश इज अ बिट लॉन्गर देन हाइफन. जो डैश होता है ना, वो हाइफन से थोड़ा सा बड़ा होता है. ओके, so in this video I'm going to tell you the uses of these punctuation marks. Okay, when are they used and how are they used? Okay, so let us start. First of all, let's know about capital letters. When do we have to use capital letters? For the first letter of a sentence, this you all know, आप सब पढ़ रहे हो ये starting से, that whenever we start a sentence, we have to start the first word using a capital letter. Okay, like cricket is a popular game. So can you see in the word cricket, C is capital. For countries, languages, religions, names of people, places, organizations, days, months, titles, etc. With all these, we have to use capital letter in the starting. Like India, it's a country, so we always have to use capital I while writing the name of a country. Okay, like for India, we have used I, capital. सेम वे वी हैव टू यूज़ विद डेज, जो हमने वीक डेज होते हैं, मंथली जो आप मंथ्स होते हैं, वी हैव टू यूज़ कैपिटल लेटर while starting that word, like Monday. Or we have to say, whenever we have to write the name of any person, so while writing the name also, you have to start the name, जो भी आप name लिख रहे हो, you have to start the name with capital letter only. This you all know. Okay, आप सबको पता है. For titles of books or films, कोई भी आपका book का name है, like let's take your own book, Honeysuckle. So you have to write it with capital H. Or name of any of the film, like Tarzan. So T should be capital, right? Now next is, it is used for abbreviations. Now what do we mean by abbreviations? Abbreviations means short forms. आप सबको पता है short forms? CBSC, NCERT, WHO. These are some of the abbreviations जिसे आप in general हम बोलते हैं short forms. Okay, so when we use short forms, each letter should be in capital. Okay. Now let's talk about full stop. You all know full stop? At the end of a sentence, first and the most important use. Whenever we end a sentence, जब भी हम कोई sentence को finish करते हैं, तो कैसे finish करते हैं? By put, like, my name is Nidhi, or your name is whatever your name is. So whenever you will end the sentence, आप क्या use करोगे? Full stop or dot.
ओके, विद एब्रिविएशंस एंड कॉन्ट्रैक्शंस, लाइक आपने लिखा एब्रिविएशन MA, सो बिटवीन दीज यू हैव यूज्ड dot or full stop, okay, because these are short forms. Same way, let's take contractions. Contractions means आप किसी चीज को बिल्कुल short कर देते हो, like professor. For professor we use PROF dot. That means we are talking about professor. Same way with doctor. With doctor we use DR dot, right? एज अ डेसिमल पॉइंट, अच्छा इन मैथ्स आपने पढ़ा होगा डेसिमल्स होते हैं मैथ्स में, जिसमें आपको पॉइंट्स में नंबर दिए हुए होते हैं. ओके, सो एज डेसिमल पॉइंट इन फिगर्स 15.5 और अमाउंट ऑफ मनी, या फिर आपको किसी को मनी बताना है, राइट, 15 रुपीज 15.5, और कोई डिस्टेंस बताना है 45.4 किलोमीटर. सो दिस पॉइंट इज दैट स्टॉप, दैट फुल स्टॉप. ओके, इन दिस वे ऑल्सो वी कैन यूज अ फुल स्टॉप. ओके, एक और कॉमन यूज है जो आप सबको पता है, क्या है? टू सेपरेट पार्ट्स ऑफ ईमेल एंड वेब एड्रेसेस. आप सबको पता है ईमेल आईडी होती है, राइट, ईमेल्स होते हैं www.something.com. ओके, सो डॉट क्या है? यहाँ फुल स्टॉप है, लाइक www.vivawats.com. सो यहाँ पे मेल आईडी में आपने क्या यूज किया है? www के बाद फुल स्टॉप. Okay, so these are some of the uses, general uses of full stop जो आप सबको पता है. It's just a revision. Okay, now let's talk about the most important but the most easy one, question mark. So when do we use a question mark? Tell me. Obviously after a question. Question mark कब use करेंगे? After a question, like who are you? So when you'll ask something to anyone, so you will put a question mark at the end. When you'll write a question, you'll put a question mark. What is your name? Again a question mark. So we use question mark after a question. Now let's talk about another punctuation mark, exclamation mark. At the end of an exclamatory sentence to show surprise or shock. ठीक है, कोई भी सेंटेंस में आपको किसी चीज़ पे सरप्राइज हो रहा है या शॉकिंग फील हो रहा है, सो दैट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के एंड में हम यूज करते हैं मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन और एक्सक्लेमेशन मार्क. ओके, सो दिस इज द यूज ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क व्हेनेवर वी राइट एनी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस व्हिच शोज अस सरप्राइज और शॉक, वी पुट exclamation mark instead of a full stop. Okay, so this was exclamation mark. Now let's talk about another punctuation mark, comma. Okay, to separate items in a list. This is the common use, right? Comma क्यों use करते हैं? Separate करने के लिए items को. Like we are going to Agra, Mathura and Jaipur. So Agra, comma, Mathura and Jaipur. ओके, नाउ वन मोर थिंग यू ऑल हैव टू कीप इन माइंड, जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स. लेट्स सपोज आपको एक सेंटेंस लिखना है जिसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं लाइक आगरा, मथुरा, जयपुर, दिल्ली. ओके, सो यू आर पुटिंग कॉमा आफ्टर ईच ऑफ द प्लेस. ठीक है, हर प्लेस के बाद आप कॉमा यूज़ कर रहे हो, बट जो आपका लास्ट प्लेस होगा ना, जैसे यहाँ पे लास्ट प्लेस क्या है जो आपने यूज़ किया? जयपुर. उससे पहले, बिफोर दैट, यू विल नॉट पुट अ कॉमा, यू विल राइट डाउन and. Like just see here, हमने यहाँ पे क्या किया है? आगरा and then you have put comma, then मथुरा. बट मथुरा और जयपुर के बीच में आपने कॉमा नहीं यूज़ किया. क्यों? बिकॉज जयपुर से आप अपने सेंटेंस को एंड कर रहे हो, वो लास्ट है, राइट? सो बिफोर दैट यू हैव यूज एंड, और एंड के बाद हमें कॉमा यूज नहीं करना. गॉट इट? सो जो आपका लास्ट वर्ड होगा उससे पहले आप एंड यूज कर लोगे इंस्टेड ऑफ अ कॉमा. नेक्स्ट, टू इंडिकेट अ पॉज, या फिर आपको किसी भी, आपने देखा होगा जब भी आप स्टोरीज पढ़ते हो इन योर बुक, वी हैव कॉमाज, राइट? इट इज जस्ट फॉर अ पॉज. कोई भी ऐसी चीज़ है जिसमें आपको हल्का सा थोड़ा सा पॉज देना है. पॉज मीन्स थोड़ा सा रुकना है. सो फॉर दैट यू हैव टू पुट अ कॉमा. लाइक आई वेंट इन, राम वॉज सिटिंग देयर. सो आई वेंट इन, मैं अंदर गई, कॉमा, दैट्स अ पॉज. आपने थोड़ा सा रुके हो. एंड what was there? Ram was sitting there. So आपको अगर किसी भी सेंटेंस में आपको थोड़ा सा पॉज देना है बोलते टाइम, थोड़ा रुकना है, पॉज मीन्स रुकना है, सो फॉर दैट यू यूज अ कॉमा. नेक्स्ट, टू एड एनी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, अगर आपको कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बतानी है, लाइक रोहन हु हैज रिसेंटली गॉट अ स्कॉलरशिप इज लीविंग आवर स्कूल. अच्छा, यहाँ पे आपने कॉमा कहाँ यूज किया? रोहन के बाद. क्यों? बिकॉज हम रोहन के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं पहले. क्या इन्फॉर्मेशन है रोहन के बारे में? ही हैज़ गॉट अ स्कॉलरशिप.
So since we have added some information, हमने थोड़ी सी extra information बताई है रोहन के बारे में. So we have added a comma after रोहन. Okay, and then we have said is leaving our school. कि रोहन जो कि एक scholarship जिसने जीती है, he is leaving our school. Again, another thing is before a question tag. Question tag से पहले. Now what do we mean by question tag? Question tags although we are having a separate chapter. हमारे पास अलग से एक chapter है इसके लिए, but in short मैं बताती हूँ आपको. Question tags होते हैं आपके छोटे short questions जो आप अपने statement में add करते हो. ठीक है, बाकी डिटेल में हम इसके chapter में पढ़ेंगे. Right? Okay, so before a question tag आप क्या लगाते हो? एक comma लगाते हो. Let's take an example. He is not an astronaut. Is he? देखो इसका मीनिंग क्या है सेंटेंस का, कि वो एस्ट्रोनॉट नहीं है. क्या वो है? सो क्या वो है इज शॉर्ट क्वेश्चन जो कि आपका क्वेश्चन टैग है. ओके, एंड इज ही जो कि आपका क्वेश्चन टैग है, यू हैव यूज्ड अ कॉमा बिफोर दैट. देखा, एस्ट्रोनॉट के बाद और इज ही से पहले आपने कॉमा यूज किया है. सो यू हैव टू यूज अ कॉमा बिफोर अ क्वेश्चन टैग. ओके, और डिटेल में हम क्वेश्चन टैग अपने सेपरेट चैप्टर में पढ़ेंगे. गॉट इट एवरीवन? ओके, नाउ लेट्स टेक अनदर वन, अपोस्ट्रोफी. नाउ अपॉस्ट्रोफी क्या होता है? जस्ट सी, फॉर ओमिटेड लेटर्स. अच्छा, ओमिशन क्या होता है? ओमिटेड मीन्स जो लेटर्स आपने हटा दिए हैं, ओमिट कर दिए हैं. लाइक व्हेन वी से आई विल, तो आपने बहुत बार देखा होगा आपकी स्टोरीज में ऐसा लिखा होता है, आई विल नहीं लिखा होता. इट इज रिटन आई अपॉस्ट्रोफी एंड डबल एल. ओके, इट इज अपॉस्ट्रोफी इन बिटवीन. आई के बाद क्या यूज किया है? अपॉस्ट्रोफी. Okay, so whenever we omit such letters we use apostrophe. देखो I will की जगह आपने क्या यूज किया? I apostrophe double L. Okay, next to show possession. अच्छा, possession क्या होता है? possession means कि anything, जो भी चीज़ है वो किसको belong करती है, किसकी वो चीज़ है, ownership. Okay, like रोहन्स पेन, तो रोहन के बाद आपने क्या लगाया? apostrophe and then S. Okay, pen, that means रोहन्स पेन मीन्स रोहन का पेन. ओके, पेन का ओनर कौन है? रोहन. अपॉस्ट्रोफी का एक और यूज क्या हो गया? टू शो पोजेशन. पोजेशन मीन्स ओनरशिप शो करना कि वो चीज किसकी है. सो रोहन्स पेन मीन्स रोहन का पेन. तो रोहन के बाद आपने अपॉस्ट्रोफी लगाया, देन एस एंड देन द थिंग, दैट मीन्स पेन. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट वन, व्हेन अ प्लूरल नाउन एंड इन एस, add only an apostrophe and not apostrophe s. इसका मीनिंग क्या हुआ? Let's take an example, then I will explain you. Let's suppose हमारे पास एक वर्ड है students, प्लूरल है students because s है इसमें, right? तो यहाँ पे हम apostrophe कैसे यूज करेंगे? यहाँ पे हम just we will put apostrophe after s, क्योंकि हमारे पास ये वर्ड क्या है? प्लूरल है, तो हम apostrophe s नहीं लगाएंगे. क्या करेंगे? जो हमारे पास ऑलरेडी प्लूरल नाउन है उसके जस्ट बाद में क्या लगा देंगे? एक अपॉस्ट्रोफी, नो एस. ओके, स्टूडेंट्स क्लब, दैट मीन्स बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक क्लब. ओके, ग्रुप. ओके, सो यहाँ पे आपने स्टूडेंट्स क्लब के अपॉस्ट्रोफी कैसे यूज किया? बिकॉज इट्स अ प्लूरल नाउन, स्टूडेंट्स. सो आपने कैसे अपॉस्ट्रोफी यूज किया? वी हैव जस्ट एडेड अपॉस्ट्रोफी आफ्टर एस. और रोहन क्योंकि सिंगुलर था तो हमने क्या किया था? उसमें अपॉस्ट्रोफी एंड एस दोनों चीज़ें लगाई थी. बट क्योंकि स्टूडेंट्स प्लूरल है, सो हमने क्या किया यहाँ पे? जो स्टूडेंट्स प्लूरल नाउन है उसके जस्ट बाद में क्या लगाया? एक अपॉस्ट्रोफी. ओके, इट्स अपॉस्ट्रोफी वाला जो होता है, इट इज एब्रिविएशन. वो एक शॉर्ट फॉर्म है. किसका शॉर्ट फॉर्म है? इट इज और इट हैज. राइट, जब आपको इट इज बोलना हो या लिखना हो तो आप क्या यूज कर सकते हो? आई टी अपॉस्ट्रोफी एस. ओके, इट्स अ शॉर्ट फॉर्म. या फिर अगर आपको इट हैज लिखना हो सो यू कैन यूज इट अपॉस्ट्रोफी एस. Okay, it's a short form of it is or it has. Okay, students, now let's come to colon. Okay, like two dots. Just see, to introduce a quotation or list in a sentence. अगर आपको आपके sentence में list है, that means बहुत सारे items हैं, so you can use a colon. Like, give me these. So give me these, that means बहुत सारे items होंगे. So आपने क्या किया? Give me these के बाद we have added a colon. Can you see colon? Two dots.
Okay, and then you have started your list. Milk, sugar, tea leaves and ginger. To start a list. ठीक है, कोई भी लिस्ट स्टार्ट करनी हो तो हम कॉलन यूज करेंगे. Now let's see semicolon to separate two parts of a sentence. आपको एक सेंटेंस के two parts को सेपरेट करना है. So आप एक semicolon यूज करोगे. Ram came yesterday. He was tired and hungry. ओके, टू अलग अलग सेंटेंस को आपने एक सेंटेंस को टू अलग पार्ट्स में सेपरेट किया बाय यूजिंग अ सेमीकॉलन. ओके, सेमीकॉलन इज गिवन इन द ब्रैकेट. आई होप यू ऑल कैन सी. Hyphen, it's a new word for you students. Hyphen, it's a small dash. Just see, to make compound words. अच्छा, आपने देखा होगा बहुत से ऐसे words होते हैं जिनके बीच में एक छोटा सा dash होता है, right? Like multi color. So multi and color, although वो एक ही word है, but आपने टू वर्ड्स को ज्वाइन करके वो वर्ड बनाया है. तो आप ज्वाइन कैसे करोगे दोनों वर्ड्स को? यूजिंग अ हाइफन. दैट मीन्स अ स्मॉल डैश. नॉन स्टॉप, अगेन नॉन और स्टॉप के बीच में क्या यूज किया? हाइफन. ओके, सो कंपाउंड दैट मीन्स टू वर्ड्स को कंबाइन करने के लिए, टू और मोर वर्ड्स को कंबाइन करने के लिए. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट डैश. डैश, डोंट कंफ्यूज हाइफन एंड डैश. डोंट कंफ्यूज योर सेल्फ बिटवीन हाइफन एंड डैश. डैश जो होता है वो थोड़ा सा लॉन्ग होता है, ठीक है. टू सेपरेट पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, लाइक गेट मी माई लैपटॉप, इट इज इन द बेडरूम. इट्स इन द बेडरूम. ओके, सो गेट मी माई लैपटॉप, आपने टू सेंटेंस के टू पार्ट्स को क्या करा है? सेपरेट करने के लिए यूज किया है इसको. Right? It's a dash and it's a bit longer than hyphen. Next punctuation mark is inverted commas and it is very, you all are very familiar with this mark. ये हम stories में बहुत देखते हैं. इसमें क्या होता है? Like when we are writing down exact words someone has said, right? Like आपको किसी ने कुछ कहा, उसके वो exact words आपने देखे होंगे स्टोरी में. बहुत सारे marks होते हैं inverted commas. Like Maya said, I like comedy films. सो आई लाइक कॉमेडी फिल्म्स किसने कहा? माया ने. तो माया के ये क्या हैं? एग्जैक्ट वर्ड्स हैं. मतलब जो एग्जैक्ट वर्ड्स माया ने कहे हैं वही हैं ये वर्ड्स. ओके, सो कभी भी हम किसी के एग्जैक्ट वर्ड्स को बताते हैं या लिखते हैं, सो वी राइट दोज वर्ड्स इन इन्वर्टेड कॉमास. दिख रहे हैं आपको? टू कॉमास ऊपर इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं, ठीक है. एंड वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी आप एग्जैक्ट वर्ड्स लिखते हो ना किसी के इन्वर्टेड कॉमास में, तो आपका जो फर्स्ट लेटर होता है, राइट, इट शुड ऑलवेज बी इन कैपिटल. इट शुड ऑलवेज स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर. लाइक देखो इसमें माया सेड आई, आई क्या है? कैपिटल लिखा है आपने. कोई भी फर्स्ट वर्ड होगा इट शुड ऑलवेज स्टार्ट विद कैपिटल लेटर. ओके, तो इन्वर्टेड कॉमास में क्या आएंगे? स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड्स जो उन्होंने कहे हैं. ओके, आई होप all these quotation marks are clear to you, their uses. Go through the video again. If any doubt, please ask me. See you all in your next class, students. Take care. Bye-bye.